السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے وہ ٹاپک یہ ہے کہ عورتوں کا میلاد کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملہ ہے. جیسے کہ عورتوں کی آواز میلاد کرتے وقت باہر جاری ہوتی ہے، روڈ پہ جاری ہوتی ہے، تو غیر محرم مردوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو اس کے کیا معاملات ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورت کے لیے پردے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کی آواز جو ہے غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے. تو اس طرح جو میلاد ہمارے گلی محلوں میں اور سٹیز میں ہوتی ہے تو اس کے اندر آواز اسپیکر مائک کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں. کیا معاملات ہیں اس کے، تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم موقف سنتے ہیں، مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں، بلکہ ایک علماء ہیں بریلوی علماء، ان کا موقف سنتے ہیں. اس کے بعد علماء کرام دوسرے بھی علماء کرام کا موقف سنیں گے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بریلوی علماء سے. یہ کام کر دیں وہ اسپیکر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہم اسپیکر میں پڑھیں گی نہ او بھائی اللہ نے عورت بنایا، مردوں کا مقابلے نہ کرو. یہ مردوں کا کام ہے. اگر جائز ہونا تو پھر جے اگر نعت پڑھ سکتے ہیں تو مسجد بنا دیں، اذان پیا دیو. نہیں سمجھے اذان پھر بڑی ہو گئی، نعت بڑا کام ہو گیا. جو تھوڑی اذان جائز نہیں، تھوڑی نعت کی جائز. اللہ دی تو کوئی اللہ تعالیٰ تو خوف کرو. تھوڑا میلاد عورتوں کا میلاد ہے، سرکار کے لے کے آئے نے قرآن کے اندر اے عورتوں نہ باہر نکلو. جی جہالت دے دور میں عورتیں نکلدیاں سن. تے جو میلاد وہ جہالت دا طریقہ زندہ کر کے تسی میلاد منانا تے پھر میلاد کرنا پھر فساد ہے. میلاد ہے فساد. اینو اکٹھا نہ کرو. عورت دا میلاد ہے کہ پچھلے کمرے وچ بیٹھ کے درود پڑھدی رہے. اے میلاد ہے. سبحان اللہ. تے جی جانا ہے تے پھر خوشبو نہیں لانی، پردے وچ جانا اسپیکری وچ نہیں پڑھنی، نہ تا پیچھے بیٹھ کے پچھلے کمرے وچ ہولی ہولی پڑھ لینی. عائشہ سرکار آئے تو سجدہ کیتا ہے. سو دوستو آپ نے بریلوی علماء کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے اسپیکر پہ میلاد پڑھنا، یہ طریقہ غلط ہے. پیچھے ایک کمرے میں جا کے آپ درود پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے میلاد ہے. تو اس طرح کے معاملات بریلوی علماء آپ کو بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو اس طرح کے معاملات لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو چلے الیاس قادری صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کس طرح کے معاملات کہہ رہے ہیں، اس بارے میں کیا موقف ہے ان کا. عورت کی آواز میں مرد حضرات نعت سن سکتے ہیں یا نہیں؟ نامحرم کی آواز میں نہیں سن سکتے. بیٹی اگر پڑھ رہی ہے تو باپ سن سکتا ہے، بیوی پڑھ رہی ہے تو شوہر سن سکتا ہے، ماں پڑھ رہی ہے تو بیٹا سن سکتا ہے. لیکن آج کل تو وہ جشن ولادت میں جہاں لوگوں نے بعض خرابیاں داخل کر دی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کیسٹیں بھی چلاتے ہیں، عورتوں کی آواز میں وہ ریکارڈنگ چلاتے ہیں، نعتوں کی کہیں کہیں چلاتے ہیں. تو یہ عوام سن رہی ہوتی ہے. یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز. سے جس نے ایسا کیا توبہ کرے اور سننا بھی نہیں ہے، کان بند کر کے یا جس طرح بھی ہو. اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ جلدی سے گزر جائیں، وہاں نہ سنیں، وہاں کھڑے بھی نہ رہیں. اور اگر آپ اتنے بات سے رہے ہیں تو جو چلا رہا ہے اس کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے اور توبہ کرے. اسٹیجوں پر بھی شاید کہیں کہیں عورتوں کا نعتیں پڑھنے کا سنا تھا میں نے، ہے نا. تو اگر ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس طرح کی نعت خوانی کا بالکل یعنی کہ جانا ہی نہیں چاہیے. اس میں تو توبہ استغفر اللہ. وہاں بیٹھ کر عورت بد نگاہی بھی ہوگی اور وہ اس کی آواز بھی سنیں گے، یہ گناہ ہے. اور جو یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں خدا جانے ان کا کیا ہوگا. ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو ایسا کبھی کیا ہے تو سچی توبہ کریں اور آئندہ پکا عہد کریں کہ عورت کی محفل نہیں کروائیں گے، محفل میں عورت کو نہیں بلوائیں گے اور ایسی محفل میں جائیں گے بھی نہیں، ایسی محفل میں چندہ بھی نہیں دیں گے. صرف اسلامی بھائی پڑھیں، نعت خواہ پڑھیں اور جو شریعت کے مطابق کلام پڑھے جائیں، شریعت کے مطابق محفل نعت ہو، صرف اسی میں چندہ دیا جائے، اسی میں شرکت بھی کی جائے. کلام بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. بعض وقت کلام بھی بڑے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، توہین آمیز کلام ہوتے ہیں. بالکل ایسے بعض اوقات میں کیا بتاؤں کفریات بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ اس طرح کی محفل میں بھی حاضری نہیں دے سکتے، نہ اس کا وہ ریکارڈنگ بھی نہیں سن سکتے. یہ اگر چل بھی رہی ہو تو بند کر دیں، آپ نہیں سن اگر سمجھ آتی ہو. اور جہاں شک پڑے تو علماء سے پوچھ لیں کہ یہ شعر جو پڑھا گیا کلام میں یہ کیا ہے،
कैसा है, इसका मतलब क्या है। तो उलमा जैसे रहनुमाई फरमाए उसके मुताबिक अमल करें। अपने तौर पर अगर ज्यादा समझ नहीं पड़ती तो कोई शरीयत का हुक्म ना लगा दें, आप ये भी ख्याल रखें। जो उलमा फरमाए अपने को वही करना है। उलमा अहले सुन्नत आशिकान रसूल, उलमा के हम पीछे पीछे हैं। क्या आपका ये जवाब सुनकर कोई ये नतीजा निकाल सकता है कि औरत नात नहीं पढ़ सकती, औरत को नात पढ़ने की इजाजत नहीं है? वो नतीजा निकालेगा तो उसकी भूल होगी। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि माँ पढ़ती है, बेटा सुन सकता है, बीवी पढ़ती है, शौहर सुन सकता है, बहन पढ़ती है, भाई सुन सकता है। अभी तो मैंने शुरू में ये कहा था। या औरत पढ़ती है, औरत सुनती है और ना महरम तक आवाज नहीं जा रही, तब भी औरत का नात पढ़ना जायज है। लेकिन ये महफिलों में जरा रिस्क होता है, बहुत एहतियात की जरूरत होती है कि गैर मर्दों तक आवाज चली जाए। एहतियात अगर करने में वो कामयाब होती है तो हम उसको गुनाहगार तो नहीं कहेंगे। सो दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब को मौक़िफ़ सुने। उन्होंने कहा कि औरतों के मामलात ऐसे हैं वो जो सवाब समझ के इस मामलात को लेके चल रही हैं मिलाद को, और गैर महरम तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है, तो ये हरगिज़ ना समझेंगे सवाब के इनको सवाब मिलेगा, बल्कि इसका गुनाह मिलेगा इनको उल्टा। तो इस तरह के मामला इलियास कादरी साहब ने ख़ुद बयान कर दिए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मिलाद को मनाती हैं औरतें और आवाज़ गैर महरम तक जाती हैं, तो इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए आप लोगों को। चलिए तारिक मुर्शिद साहब की तरफ चलते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। उसूली तौर पर तो देखें, औरत की आवाज़ सतर में दाखिल नहीं है, औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है। पर्दा वहाँ कहा जाएगा जहाँ औरत की आवाज़ में फितने का अंदेशा हो। चूँकि आम तौर पे जवान औरत की आवाज़ से जवान मर्द को फितने का अंदेशा बहरहाल होता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसके जो मुशाहिदे पर मबनी है। इसलिए मना किया जाएगा कि जवान औरत जवान मर्द से बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी बातें ना करे। जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ, जैसे मसाइल पूछने के लिए बातें तो नहीं बात की जा सकती है। और कुरान में अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन को क्या फरमाया कि जब लोग आपसे मसाइल पूछने के लिए आए, फला तख़ज़अना बिलक़ौल, अपनी आवाज़ में नरमी पैदा ना करें। औरत की आवाज़ में एक फितरी लचक होती है, तो वो लचक पैदा ना करें उसमें। तो सहाबियात को कहा जा रहा है कि सहाबा से जब बात करें, और सहाबियात भी जो उम्महातुल मोमिनीन है, मोमिनीन की माएँ हैं, बिल्कुल सही। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसमें भी आप वो जो एक नरम अंदाज होता है उससे बात ना करें। तो आज ख़वातीन ये एहतियातें करती नहीं हैं। फ़ोन पे लंबी लंबे मसाइल, लंबी लंबी बातें, फिर हंसी मजाक और ऐसे बेतकल्लुफ़ी, तो ये बहरहाल नाजायज़ और हराम है। इसलिए कि अल्लाह ने ज़िना से भी मना किया, और वो तमाम चीज़ें जो ज़िना के करीब लेकर जाती हैं उनसे भी मना किया। तो किसी भी जवान लड़की से बेतकल्लुफ़ हो के हाँ हाँ हुई गपशप लगाना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसकी बिल्कुल शरीयत में गुंजाइश नहीं है, और ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो पर्दा ना होने का मतलब ये है कि ज़रूरत के वक्त बात कर सकती है। कोई भी कोई ज़रूरी बात पूछनी हो, या कोई जो है ना कोई ख़ास मसला पूछना हो, तो उसमें इजाज़त है। रहा ये मसला कि ख़वातीन यूट्यूब पे चैनल बना सकती हैं फ़ी नफ़्सी, तो जैसे मर्दों के लिए चैनल बनाना जायज़ है, ख़वातीन के लिए भी जायज़ है। और अगर इसमें बेहयाई का कोई उनसर ना हो तो ठीक है, अगर प्रॉपर पर्दे के साथ। बेहतर तो यही है कि जवान लड़की अपनी आवाज़ का भी पर्दा करे। लेकिन बहुत से घरों में मसाइल होते हैं ख़वातीन के साथ, और मुआशी मसाइल होते हैं उनके साथ, मुआशी तंगी होती है, या किसी खातून के पास कोई ऐसी एबिलिटी है, काबिलियत है मेडिकल साइंस से मुताल्लिक़, तो वो यूट्यूब का चैनल बना के अगर उसको शेयर कर लेती है, तो बाकी उलमा से भी इस बारे में फ़तवा लिया जाए। मेरा ख़्याल है इसमें गुंजाइश इस ज़माने में होनी चाहिए। एहतियात का तकाज़ा तो ये है कि ना किया जाए ये काम, लेकिन फतवा क्या है? तक़वा तो यही है कि ना करें जवान औरत ये काम, लेकिन फतवे का तकाज़ा ये है कि इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। अगला सवाल। तो दोस्तों, आपने तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ सुनिए। उन्होंने औरत के आवाज़ के पर्दे के हवाले से बात की कि पर्दे में इस तरह के मामला हैं कि मिलाद के हवाले से बात नहीं थी उनका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था। इस हवाले से था कि अगर किसी मकसद से, यानी ज़रूरी काम की वजह से अगर औरत किसी मर्द से बात करती है तो सख्त लहजे में बात करे, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ चलते हैं, तो आगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। कि डॉक्टर फ़रद हाशमी साहिबा के लेक्चर्स यूट्यूब के ज़रिए आम हो चुके हैं। हालांकि आप औरतों के लेक्चर सुनने से मर्दों को मना भी करते हैं। अगर आप इसे जायज़ साबित कर दें और मेरे भाई भी इसे तस्लीम कर लें, तो क्या मैं आपकी तरह यूट्यूब चैनल बनाकर मैदान अमल में उतर आऊँ? मेहरबानी करें जी मेरी बहन, आप मैदान अमल में ना उतरें, आप अपने घर में ही रहें, ठीक है जी। मैदान अमल में जो उतरने वाला मसला है, ये जो डॉक्टर फ़रद हाशमी की इन्होंने बात की है ना, डॉक्टर फ़रद हाशमी के सारे मामलात एक्सीडेंटली हुए हैं,
हादसाती तौर पे हुए हैं, और उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मेरी वीडियोस जो हैं वो मर्द हजरात देखें। उनका टोटली दावत का काम औरतों में है। और इस हद तक है कि वो औरतों में भी निकाब करके आती हैं, औरतों ने भी उनका चेहरा नहीं देखा हुआ, इस तरह वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो डॉक्टर जुबैर इदरीस उनके जो हस्बैंड हैं उनसे मेरी डिटेल मुलाकात भी हुई है उनके मरकज के अंदर इस्लामाबाद में। तो वो मर्दों के लिए वाला से लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं, क्लासें करते हैं। अगर उन्हें औरतों को भी करना है वो पर्दे में कर रहे होते हैं। डॉक्टर फरत हाशमी की जो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आई है, सर यूट्यूब के ऊपर तो बहुत कुछ आया हुआ है, इसका ये मतलब तो नहीं कि यूट्यूब पे आ गया तो वो जायज़ हो गया देखना। यूट्यूब पे भी डॉक्टर फरत हाशमी की वीडियोस या उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मर्द ही देखें, औरतों मर्द ना देखें, औरतें ही देखें सिर्फ। मेरा तो इसके ऊपर पहले भी क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। सईदा आयशा की मिसाल देना गलत है, क्योंकि वो इल्म सिखाती थी जो बाकी सहाबा के पास नहीं होता था। उसके बाद ज़रा मुझे बताएं कितनी ताबईन है उन्होंने मदरसे खोल के तो मर्दों को तालीम दी हो। मुड़ चुड़ के हज़रत आयशा की मिसाल ही आती है ना, वरना ये 6 इमाम जो है कुतुब सित्ता के, एक औरत भी होती है ना जिसने कोई हदीस की किताब लिखी हुई होती। दुनिया में कोई हदीस की किताब किसी एक औरत से दिखा दे सर, 300 से ज़्यादा हदीस की किताबें हैं जो मोटी मोटी हैं, बारीक मसालों में जाए, किसी एक औरत की कोई तसनीफ दिखा दें आप। बिल्कुल सही। ये औरतों का काम नहीं है, औरतों का काम फॉलो करना है। इसलिए अल्लाह ने कोई पैगंबर भी नहीं बनाया औरतों में से, ये डोमिनेंसी वाला मामला। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, लिहाजा औरतों का काम नहीं मैदान अमल में उतरे। वो पहले जो उतरी हुई हैं औरतों तक तबलीग कर रही हैं वो ठीक है। यूट्यूब पे अगर आ भी गई उनकी वीडियो, मर्द ना देखें औरतें देखें, आप यूट्यूब पे ना आए, आप अपने हल्के असर में दावत तबलीग का काम करें। और या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी मर्द को लॉन्च करते हैं। आपके पास कोई ऐसी खास चीज़ें हैं तो अकेडमी के ड्रेस पे उस्मान भाई को जिस तरह ये लेटर आपने भेजा है इतना, ये लिख के आप और कोई लेटर में भिजवा दें, हम उसको मतलब अपने अंदाज में बयान कर देंगे। ज़रूरी तो नहीं कि औरतों ने मैदान अमल में उतरना है। सही। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को पैगंबर नहीं बनाया, वो उनको इंट्रोवर्ट रहना है, ये मर्दों का काम है एक्सट्रोवर्ट होना। ठीक है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। इससे जो है मिलाद के जो कॉन्सेप्ट औरतों के लिए होता है कि गैर महरम तक आवाज़ जारी होती है, इस तरह के मामला औरत की आवाज़ के पर्दे के लिहाज से भी सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।